Good morning to all. Now we are going to start today class. Yesterday we have studied about the electric field due to electric dipole on axial line, huh, on the axis of electric dipole. Today we will study electric field of an electric dipole on equatorial plane. Okay. The electric field the electric field of an electric dipole. Yesterday we have discussed about electric field, what will be on axis of electric dipole. Now it's second case. Now second case in which we are going to study electric field of electric dipole on its equatorial plane for the points on the equatorial plane. Second point, for points on the equatorial plane. अंडरस्टैंड व्हाट इज इक्वेटोरियल प्लेन? ध्यान से देखो अभी। हाँ, एक बार मैं इक्वेटोरियल प्लेन के बारे में बता दूं, इसके बाद फिर आपको आगे स्टडी करने को। देखो, लेट अस सपोज AB is an electric dipole, plus q charge placed at this point A and minus q charge placed at this point B. This is center point, called this is O, point O. You can simply say C also. Okay, now let us say this is C. C is center of electric dipole. Now if this line, this dotted line passes through the center of electric dipole and normal to its axis. This is axis and this is normal to the electric dipole. ठीक है ना? And this axis is called equatorial axis and a plane let us suppose this is the plane in which this line, this equatorial line exists. Now this equatorial line lies on this plane. So this plane is called equatorial plane. Okay, this plane is called equatorial plane. Let us suppose like this. This is center point and this plane passing through its center and perpendicular. Then this plane will be this plane. This plane will be equatorial plane. Okay, this plane will be equatorial plane and this line will lies equatorial line lies on this plane. Okay, now we are going to study about the electric field. Now what will be the electric field at any point on equatorial plane? Let us suppose this is equatorial plane now. Let us suppose this is point P. This is point P.
point P at r distance. This is point P at r distance from the center of electric dipole. Now let us remove this pen. It will be more clear to you. But you should understand, huh? You should understand this line is lies on a equatorial plane. Okay. Now this point C, let us, this is point P on which you have to find the electric field due to this dipole. If the length of electric dipole is 2a, then it will be a and it will be a. Let us suppose this point P is at r distance from the center of electric dipole, and this then what will be the distance of a, that means plus q, from point P? This is a, this is r, and this will be the ACP. This is the right angle triangle. So this will be the hypotenuse, okay, and its value will be Pythagoras theorem. Use Pythagoras theorem, and it will comes r square plus a square, okay, and simply this is also r square plus a square, okay. Understand now? Okay, because using Pythagoras theorem you can find the value of hypotenuse. Okay, this is point P on which you have to find the electric field. Now there are how many charges? 2 charges. You have to calculate the electric field at point P due to individual charge, plus q and minus q charge. Then the resultant electric field at point P will be vector sum of this electric field and electric field due to this. Okay. Now you can simply write here electric field at point P due to plus q charge, due to plus q charge. Okay, let us say this is what we'll say, this is E1. Let us say this is E1. E1 is electric field at point P due to this charge, plus q charge. Then it will be 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square. R square, that means this square. Okay, then what will be its value after squaring the root? Okay, it will be r square plus a square ना. देखो स्क्वायर रूट हट जाएगा जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे इसका. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू plus q charge. And what will be direction of this E1? E1, this is plus. You put here test charge at point P. Then find the direction of motion of this test charge. This is plus and this is plus. This test charge will repel by this charge. Then that is this. This will be the direction of E1. This is E1. Understand or not? E1 is directed away from the plus q charge. Okay.
its direction will be from A to P. Now, A to P. And electric field at T point P due to minus Q charge. Due to minus Q charge, let us say this is E2. This is E2. Then what will be it? 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. R square, that means same here. R square plus A square. No? And what will be the direction of E2? Put here test charge, and this is negative. This is positive. This test charge will get attracted towards negative charge, and this value will be this, and direction is this. This is direction of E2. Okay, this is direction of E2 from P to B. P to यहां तक समझ में आया? ओके, क्लियर है ना? पहले पॉइंट P पे प्लस Q की वजह से और माइनस Q की वजह से सेपरेटली हमने लिख लिया. देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. Here there is two electric field E1 and E2 acting at point P. Now their resultant electric field will be, let us suppose here we draw E1 and E2. This is E1 and this is E2. Let us suppose you have to find the resultant vector of these two vectors. Okay, then what is the process? You have to make the parallelogram and then apply the parallelogram law of vector addition. You should draw a parallel line to the E2 from the head of E1, and from this parallel to E1, and here they meet, and then you should this, and this will be the resultant. This will be the resultant vector. Okay. Now similarly you can find the resultant vector of E1 and E2. It will be like this. This will be the resultant vector of vector E1 and E2. This is resultant vector of vector E1 and E2. Then now tell me, this line and this line is parallel to each other. Okay, this line and this line, we are taking AB and this line. Okay, this E2, let us suppose this is, let us suppose this is E2. Okay, E2, this is E2, this line is. If this angle is theta, then what will be this angle? This angle will also be theta. You know, na? So if we take this point P from this is theta, because it is a center line, so this will be also, this also will be theta, and this is theta, and this is also theta. This is theta. Okay, then angle between E1 and E2 is 2 theta. Yes, na? Theta plus theta. You know that if this is vector A, this is vector B, this is vector A, here angle theta is in between two vectors, then you have to find the
2ab cos थीटा ना, ऐसा होता है। ये क्या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जैसा कि आपने क्लास 11 में पढ़ा है। ओके, देन इन प्लेस ऑफ थीटा हियर ए एंड बी के बीच एंगल थीटा है, जबकि यहाँ दो वेक्टर है e1 और e2, इनके बीच एंगल कितना है 2 थीटा। देखो थीटा ये और ये थीटा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। तो आप अपने दिमाग में रखेंगे यहाँ थीटा के स्थान पर हम क्या लिखेंगे इसमें 2 थीटा, ठीक है ना, समझ आया इसको कैसे। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं रिजल्टेंट वेक्टर E, ओके, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लिखें, वी आर राइटिंग हियर मैग्नीट्यूड, या फिर लिख दे रहे हैं हम, देखो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे हम बोले इसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड है e1 का स्क्वायर प्लस e2 का स्क्वायर प्लस 2 e1 e2 cos 2 थीटा, ठीक है। ओके, e1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर प्लस 2 e1 e2 cos 2 थीटा, because e1 and e2 angle between e1 and e2 is 2 theta. Okay, but you can see that from this equation, from equation 1 and equation 2, but from equation 1 and 2, but from equation 1 and 2 what is, देखो इसका मैग्नीट्यूड जरा देखो, सिर्फ मैग्नीट्यूड की वैल्यू करो 1/4 पाई एप्सिलॉन q बाई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो देखो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है क्या, तो यहां से आप ऐसे लिख सकते हो फ्रॉम दिस e1 वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू e2 वेक्टर मैग्नीट्यूड। Here from equation 1 and 2 you can say that their magnitude are equal, and let us say this is called E1, E1, okay, this is, या फिर इसको बिना लिखे आप लिख सकते हो ऐसे ना, हम जहां जहां E2 है उसके स्थान पे E1 लिख सकते हैं, या फिर जहां जहां E1 है उसके स्थान पे E2 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब हम यूज करें अगर इनका, तो क्या होगा, यहाँ क्या देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा दिख रहा है ना, ठीक है। देखो E मैग्नीट्यूड ऑफ E विल बी, ध्यान से देखो यहाँ पे E1 हर जगह पे हमें E1 लिख रहे हैं, E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस 2, ये E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 E1 स्क्वायर, हम ऐसे पहले लिख दे रहे हैं 2 मॉड ऑफ E1 का स्क्वायर प्लस ये E1 इंटू E2, ये E1 लिख दीजिए, यहाँ पे भी 2 E1 स्क्वायर E1 स्क्वायर इंटू cos 2 थीटा, ठीक है, 2 E1 स्क्वायर cos 2 थीटा हो गया। अब यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ E वेक्टर विल बी, अब देखो यहां से E1 स्क्वायर, यहां से E1 स्क्वायर, दोनों से कॉमन होगा, बाहर आएगा तो E हो जाएगा E1, ओके, अंडर रूट
क्या बचा भाई, देखो यहाँ से 2 है, यहाँ से 2 कॉमन ले लो। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, दिख रहा है ना, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बचेगा। अब देखो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे ई वेक्टर विल बी E1, सिंपली E1 लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड लगाने, वेक्टर लगाएंगे तभी मैग्नीट्यूड लगाने की जरूरत है, सिंपली E1 मैंने लिख दिया। अब ये अंडर रूट 2 1 प्लस, अच्छा एक हम टेक्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यूज करने जा रहे हैं। देखो क्या आपको मालूम है, यहाँ पे सिंस cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको एक और फॉर्म में लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो हमको जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको हम यूज करेंगे। तो ये cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो ये जो है आप थोड़ा सा एक पॉइंट याद रखेंगे, मैथ वाले तो हमेशा देखे हुए हैं, बायो वाले जो है इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको यहाँ पे हम यूज करेंगे, ठीक है ना। इसको जरा यहाँ पे यूज करिए, cos 2 थीटा के स्थान पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये देखो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, माइनस माइनस 1 यहाँ पे, यहाँ प्लस 1, तो अब देखो क्या हो जाएगा, ई वेक्टर बिल्कुल E1 अंडर रूट 2 इंटू क्या यहाँ बचेगा, ये 1 गया, ये बचा 2 cos स्क्वायर थीटा। अब देखो ब्रैकेट के स्क्वायर रूट के बाहर अगर आएगा, ये स्क्वायर रूट के बाहर लिखेंगे तो क्या होगा, E1 2 इंटू 2 टाइम है तो 1 टाइम आ जाएगा 2 इंटू cos स्क्वायर है तो cos थीटा आ गया, तो ये क्या आ गया 2E1 cos थीटा, ठीक है ना। अब देखो हमको क्या रखना है ना, वैल्यू पुट करनी है, E1 की और cos थीटा की वैल्यू पुट कर दें, हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना, आंसर आ गया। कैसे, देखो ध्यान से देखो, टू E1 की वैल्यू कहाँ है, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 यू कैन राइट हियर वैल्यू ऑफ E1 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, विजुअल हो रहा है ना, ठीक है, हाँ गुड। और इंटू इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे यार, बताओ, कॉस थीटा की वैल्यू बता सकते हो क्या, हाँ देखो इस ट्रेन कोई भी एक ट्रेंगल ले लो cos थीटा के लिए, ट्रेंगल ACP या ट्रेंगल BCP ना, तो यहाँ पे cos थीटा देखो, यहाँ देख लो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या हो गया, cos थीटा बेस क्या हो गया, ये A इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे cos थीटा के स्थान पे लिख दूं मैं डायरेक्ट A अपॉन व्हाट अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर हाफ, ठीक है ना, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर हाफ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ भाई, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे, सिंस फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल कोई सा भी ले लो,
ए सी पी, यहाँ पे आपने लिखा cos थीटा इक्वल टू ए अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना, ये आया। इसका यूज हमने किया वहां पे, अंडर रूट मतलब पावर हाफ ना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आप अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को जो है आप जो है पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे बच्चों, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको इरेज करूँ क्या? हाँ, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे आ जाएगा इतने में, देखो ई, सिंपली ई लिख रहे हैं हम, या इसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं ई में। अब देखो क्या लिख रहे हैं हम, ध्यान से देखो, ऊपर के सभी को एक साथ लिख दे रहे हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे क्यू है, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्यू इंटू 2a, ये 2 जो है इसके साथ a के साथ चला गया, q इंटू 2a ऊपर हो गया अपान। अब देखो भाई यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1 है, और यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर हाफ है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस हाफ 3/2, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। अब ये बताओ हमको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये बताओ क्या है ये q इंटू 2a, ये क्या है भाई? हाँ, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p, ठीक है ना, p, तो इसको सिंपली p लिखते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, या सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको मैं इसका अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूं कि a जो है r से बहुत छोटा है, r इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू a, वेरी वेरी ग्रेटर देन a, r is very very greater than a, then you can neglect the value of a in comparison to r, then what will be its value r square into 3/2, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, r क्यूब होगा, डायरेक्ट लिखूं, एनी प्रॉब्लम? समझ में आई है कैसे हुआ, ये चला गया, ठीक है ना, अब ये r स्क्वायर हुआ इनटू 3/2, तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, तो क्या बचा ये r पावर, ये 3 बचा ना, तो वही मैंने लिख दिया यहाँ पे, ओके। दिस इज मैग्नीट्यूड, देखो ये मॉड हमने लगाया इसलिए मैग्नीट्यूड है, अगर आपको हटाऊं तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन आपको बताना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में, तो बताओ जरा क्या होगा इसका डायरेक्शन, जरा एक मिनट ना, डायरेक्शन इसका देखो, रिजल्टेंट वेक्टर किधर है ई ना, ई का डायरेक्शन किधर है, मतलब ए से बी के डायरेक्शन में इधर ना, दिस डायरेक्शन, ये कौन सा डायरेक्शन है प्लस से माइनस के डायरेक्शन में, जबकि हम जानते हैं कि P का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, P का डायरेक्शन जो होता है वो किधर होता है, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये P का जो डायरेक्शन है वो B से A की तरफ होता है, अगर किसी भी वेक्टर के सामने नेगेटिव साइन लगा दें तो वो क्या हो जाता है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म में लिखूं, वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूं, यहां पे माइनस साइन प्लेस कर दूं, p वेक्टर होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, अगर यहां पे मैं नेगेटिव साइन प्लेस कर दिया, मतलब ये बताएगा E इज in the direction of opposite to the direction of
P, P के अपोजिट डायरेक्शन में E का डायरेक्शन होगा, निगेटिव साइन ये बताएगा, ठीक है ना, और कुछ नहीं। देखो मैग्नीट्यूड अगर E इक्वेटोरियल और E एक्सियल की बात करें ना, ये E इक्वेटोरियल है ना, ऐसे आप समझ लीजिएगा। इसके पहले जो कल का डेरिवेशन हुआ था ना, वो E एक्सियल था, उसको यहाँ E AX कुछ भी लिख लीजिएगा आप अपने समझने के लिए। देखिए वहां पे उससे और इससे अगर आप कंपेयर करें, इन दोनों में अगर आप कंपैरिजन करें, उन दोनों को अगर कंपेयर करें आप, तो क्या आप पाएंगे कि इसका मैग्नीट्यूड जो है एक्सियल वाले के मैग्नीट्यूड का हाफ है क्या। वहां पे भाई 2p होता था, 2p/r3, बाकी सब यही होता था, 2p/r3 तो होता था, और निगेटिव साइन मतलब दोनों का अपोजिट डायरेक्शन हो गया। और मैग्नीट्यूड की बात करूं मैं, मैग्नीट्यूड की बात करूं तो एक्सियल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डाइपोल के एक्सिस पे जो होता है वो ज्यादा होता है इससे, ठीक है ना। बताओ क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूं क्या, निगेटिव साइन रिप्रेजेंट, negative sign represents the direction of E vector is opposite to the direction of E vector is opposite to the direction of P vector। देखो नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स दैट डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर यहाँ पे इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर। P वेक्टर माइनस से प्लस की तरफ होता है, जबकि यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर जो आया वो प्लस से माइनस की तरफ इस डायरेक्शन में है। ओके, तो यहाँ तक जो है